Good morning, students. How are you? Today we are going to read English Reader book. Okay, we are going to read 7th chapter of this book. The name of our chapter is Effect of Society. So open page number 39 and let's begin to read. Once there lived a bird and her two young ones in a nest in a dense forest in a tall shady tree. The mother bird took care of her little ones day and night. एक बार एक बर्ड अपने टू यंग वंस के साथ एक डेंस फॉरेस्ट मीन्स घने जंगल में एक नेस्ट में रहती थी एंड वो अपने यंग वंस की बहुत देखभाल करती थी है ना डे एंड नाइट उनकी केयर करती थी वन डे देयर वॉज अ फायर स्टॉर्म. There was thunder, lightning, and rain, and the wind blew down many trees. The tall tree in which the birds lived also came down. A big, heavy branch hit the nest and killed the bird. Fortunately, the strong wind blew the young ones away to the other side of the forest. One of them came down near a cave where a gang of robbers lived. The other landed outside a safe cottage a little distance away. एक बार बहुत बड़ा स्टॉर्म आता है. स्टॉर्म मीन्स तूफान आता है. थंडर लाइटनिंग भी होती है यानी बादल भी गरजते हैं एंड बिजली भी चमकती है एंड बारिश भी होती है. तेज हवा से बहुत सारे ट्रीज झुक जाते हैं. इस स्टॉर्म की वजह से वो टॉल ट्री जिसमें वो बर्ड रहती थी अपने टू यंग वंस के साथ वो नेस्ट के साथ गिर जाती है. एक बिग एंड हैवी ब्रांच बर्ड के नेस्ट को हिट करती है जिसकी वजह से मदर बर्ड जो थी वो मर जाती है. उसकी डेथ हो जाती है. तेज हवा यंग वंस को अलग कर देती है. एक यंग वन केव के पास जाके गिरती है जहाँ गैंग ऑफ रॉबर्स रहते थे और दूसरी यंग वन सेज कॉटेज जो थोड़ी सी दूरी पर था वहां जाके गिरती है. Days passed and the baby birds became big birds. One day, the king of the country came to the forest to hunt. He saw a deer and chased it. It ran deep into the forest as being chased by the king. Soon the king lost his way and didn't know where he was. दिन निकलते गए और बेबी बर्ड बिग बर्ड में चेंज हो जाते हैं. एक दिन उस कंट्री का किंग जो था वो फॉरेस्ट में हंटिंग करने के लिए आता है. किंग डियर को देखता है और उसको चेज करने लग जाता है. चेज मीन्स पीछा करने लग जाता है. जल्दी ही किंग अपना रास्ता भूल जाता है और ये नहीं समझ पाता कि अब वो कहाँ आ गया है. He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. Very tired by now, he got off his horse and sat down under a tree that stood near the cave. Suddenly, he heard a voice crying out, "Quick, hurry up! There is someone under the tree. Come and take his jewels and his horse. Hurry, else he will slip away." The king was amazed. He looked up and saw a big brown bird on the tree under which he was sitting. He also heard faint noises issuing from the cave. He quickly got on to his horse and rode away as fast as he could. किंग हॉर्स राइडिंग करते करते बहुत दूर चला जाता है. इतना दूर चला जाता है कि फॉरेस्ट का दूसरा एंड आ जाता है. जब किंग राइडिंग करते करते टायर्ड हो जाता है तो वो एक ट्री के नीचे रेस्ट करने लगता है. वो ट्री केव के पास था. अचानक से किंग को चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी, जल्दी आओ, क्विक हरी अप, कोई ट्री के नीचे है, उसकी ज्वेल्स एंड हॉर्स ले लो, जल्दी करो नहीं तो वो चला जाएगा. किंग बहुत सरप्राइज्ड हो जाता है. जब किंग ऊपर देखता है तो उसे एक बिग ब्राउन बर्ड दिखाई देता है. किंग को कुछ नॉइसेस केव से भी सुनाई देती हैं. किंग जल्दी से अपने हॉर्स पर बैठता है और जल्दी से स्पीड से वहाँ से रवाना हो जाता है. जितनी स्पीड से वो आगे हॉर्स राइडिंग कर सकता था उतनी स्पीड से हॉर्स राइडिंग करते हुए वहाँ से निकल जाता है. Soon he came to a clearing which looked like an ashram. Let's open page number 40. Was the sage cottage. The king tied his horse to a tree and sat down in its shade. Suddenly he heard a gently voice announce, "Welcome to the ashram, sir. Please go inside and rest. The sage will be back soon. There's some cold water in the pot. Please make yourself comfortable." The king looked up and saw a big brown bird in the tree. He was amazed.
This one looks like the other bird outside the cave, he said to himself aloud. जल्दी ही उसे एक आश्रम दिखाई देता है। जब वो हॉर्स राइडिंग करते करता चला जाता है ना, तो उसको एक आश्रम दिखाई देता है जो सेज कॉटेज था। किंग अपने हॉर्स को एक ट्री से टाई कर देता है और उसकी सेट पे बैठ जाता है। अचानक उसे बहुत जेंटल नॉइज सुनाई देती है। वो किंग क्या सुनता है? व्हाट डिड ही हियर? वेलकम टू आश्रम, प्लीज अंदर आइए और रेस्ट कीजिए। जल्दी ही एक सेज वहां आता है। वो उस किंग को कहता है कि इस पॉट में कोल्ड वाटर है, प्लीज आप इस कोल्ड वाटर को पीकर कंफर्टेबल हो जाइए। किंग ऊपर देखता है। जब किंग ऊपर देखता है तो उसे क्या दिखाई देता है? उसे बिल्कुल वैसी ही बिग ब्राउन बर्ड दिखाई देती है ट्री पर बैठी हुई। किंग दोबारा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि ये बर्ड बिल्कुल उस बर्ड के जैसी ही लग रही थी जिसे किंग ने केव के पास में देखा था। किंग ये अपने आप से ये कहते हुए जोर से चिल्लाता है कि अरे ये तो बिल्कुल वैसी ही बर्ड है जैसे उसने उस केव के पास में देखी थी, वैसी ही इस आश्रम के पास में है। यू आर राइट सर, आंसर्ड द बर्ड, ही इज माई ब्रदर बट ही हैज फ्रेंडशिप विद रॉबर्स, ही नाउ टॉक्स एज दे डू, he doesn't talk to me anymore. Just then the rishi entered the ashram. बर्ड आंसर देती है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। किंग को आंसर देती है वो मेरा ब्रदर है ना। जो आपने केव के पास में बर्ड देखा है वो मेरा ब्रदर है, बट उसकी रॉबर्ट्स के साथ फ्रेंडशिप है। वो उसी तरह से बातें करता है जैसे रॉबर्ट्स करते हैं, वो मेरी तरह बिल्कुल भी बातें नहीं करता है। जस्ट जस्ट इसी के बाद ऋषि आश्रम में आ जाते हैं। Okay, so now let's begin to read next paragraph. Welcome, sir, he said to the king. Please come inside and make yourself at home. You look tired. Rest for a while, then you can share my food. The king told the rishi the story of the two birds and how each had behaved so differently, though they looked alike. The forest is full of surprise, he said. ऋषि किंग का वेलकम करता है और किंग को अंदर आने के लिए भी कहता है। वो किंग से कहता है कि आप टायर्ड लग रहे हैं। टायर्ड मीन्स थके हुए लग रहे हैं, है ना। तो इसलिए आप थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए और रेस्ट करने के बाद मेरे साथ फूड भी शेयर आप कर सकते हैं। अब किंग ऋषि को सारी स्टोरी सुनाता है कि दो बर्ड थे जो एक ही जैसे दिखते हैं पर उनका बिहेवियर कैसे एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। किंग ऋषि से कहता है कि ये फॉरेस्ट फुल ऑफ सरप्राइज्ड है ना। जो लोग एक जैसे दिखते हैं पर उनका बिहेवियर जरूरी नहीं है कि एक जैसा ही दिखाई दे। The holy man smiled and said, after all, one is known to the company one keeps. That bird has always heard the talk of robbers. He imitates them and talk about robbing people. This one has repeated what he has always heard. He welcomes people to the ashram. He welcomes all and speaks politely. They talk as they hear. They both are different because of the different effect of their society. So it is well said, one is known to the society one keeps. The holy man स्माइल करता है और कहता है आफ्टर ऑल वन इज नोन टू द कंपनी वन कीप्स। जो जैसी संगति जिसको मिलती है वो वैसा ही बन जाता है। जो केव के पास बर्ड है वो हमेशा रॉबर्ट्स की बातें सुनते हैं और वो रॉबर्ट्स को इमिटेट करता है, मीन्स उन्हीं की कॉपी करता है और हमेशा पीपल्स की रॉबिंग करने की मतलब लूट पाट करने की बातें करता है। और ये बर्ड वही रिपीट कर रही है जो ये सुन रही है। इसीलिए ये दोनों बर्ड डिफरेंट हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट इफेक्ट ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि इनकी सोसाइटी का इफेक्ट इन पर पड़ रहा है। तो जैसी सोसाइटी जिसको मिलेगी उसका बिहेवियर वैसा ही हो जाएगा। ये दोनों बर्ड की सोसाइटी अलग थी इसीलिए दोनों बर्ड का बिहेवियर भी डिफरेंट है। सो इट इज वेल सेड वन इज नोन टू द कंपनी वन keeps. Now students, how do you find this chapter? The story of two young ones. I think it is very good story. So today what is your homework? You have to read this chapter properly and try to understand it. Okay, and you also have to do you have to complete the book exercise of this chapter by yourself. Okay students, so stay safe, stay healthy and keep learning.